हाँ Welcome back. If you can listen me. Now we go here for the hypothesis. There is no the previous statement for which we did our write the purpose and make 6 of the research questions for the same. We are going to write some hypothesis. For example, we can write over here. There is no relationship between transformational leadership style and students' achievement. This is the null hypothesis. There is no relationship between transformational leadership style and teacher satisfaction. Again, null hypothesis. Achievement and satisfaction, as I earlier stated that in the case of research questions, because achievement is based on the satisfaction of the teachers. There is no relationship between transformational leadership style and teachers' perceived effectiveness of the principles. So the student's achievement is directly based on the effectiveness of the principal. There is no relationship between transformational leadership style and teacher willingness to give extra efforts. So all 6 the sub questions we made here, we have now framed the 6 hypotheses. There is no relationship between transformational leadership style and school size and gender. हम सेपरेटली उनको अलग अलग से स्टेट कर सकते हैं हाइपोथेसिस को. ये आसान रहता है इन्हें टेस्टिफाई करना और इनका जवाब देना. फॉर एग्जांपल, another example we can have of problem statement or the research statement or the topic, a study of the relationship between leadership and school climate in rural secondary schools. Here independent variable is leadership and dependent variable is school climate, and intervening variable is, yeah, moderating variable is relationship, and participants are secondary schools, and research site is रूरल सेकेंडरी स्कूल यानी देहात. तो यहाँ पे वो 5 की 5 चीजें फिट आ रही हैं जिनका हम जिक्र करते हैं मोस्टली. The purpose of this study was to investigate the relationship between school climate and the leadership styles of administrators in selected rural central पंजाब लिखने इसको छोड़ दें पेंसिल्वेनिया को, high schools serving combined 7 to 12th grade population.
7वीं से 12वीं तक हायर सेकेंडरी स्कूल जो हमारे पंजाब के अंदर होते हैं, वहाँ क्लास 6 से लेके तो सेकेंड ईयर तक स्टूडेंट्स होते हैं। उनकी आप अगर इसको एग्जांपल को ले लें तो ये पर्पस ऑफ द स्टडी और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी है। इसके हम रिसर्च क्वेश्चन जो बना सकते हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे। हाउ डू टीचर्स परसीव द लीडरशिप स्टाइल ऑफ द प्रिंसिपल? हाउ डू टीचर्स परसीव द स्कूल क्लाइमेट? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स परसेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल्स लीडरशिप स्टाइल एंड टीचर्स परसेप्शन ऑफ द स्कूल क्लाइमेट? इस तरह से मल्टीपल रिसर्च क्वेश्चंस बना सकते हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम हाइपोथेसिस बना के देखते हैं। There exists a single significant relationship between teacher perception of principal leadership style and teacher perception of school climate. Second hypothesis बना सकते हैं जो ये भी डायरेक्शनल ही है। There exists a significant relationship between principal leadership style and school climate. So तो यहाँ पे मैंने आपको मल्टीपल एग्जांपल्स जो थी वो 4-5 रिसर्च टाइटल बना के दिए कि अगर रिसर्च कंडक्ट करनी है तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, शेप्स हैं रिसर्च टाइटल की। उनके अंदर मैंने आइडेंटिफाई करके दिया कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और फाइनली इंटरवीनिंग वेरिएबल एज वेल। और फिर मैंने उस पे आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऑफ द रिसर्च एक ही बात है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव बना के दिए और उस रिसर्च ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए हमने रिसर्च क्वेश्चंस भी बनाए और हाइपोथेसिस भी बनाए। तो ये एक दफ़ा नहीं, कोई 3 से 4 दफ़ा मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स कोट की। आज का सारा दिन हमारा हाइपोथेसिस पे, इसकी नेचर, टाइप पे, इसके कंपोनेंट्स और फैक्टर्स पे लगा। आई थिंक सो कि आपको इंशाल्लाह इसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। Here for your assignment are the questions. Can you see all? Can you see? मैं आपको अनम्यूट करता हूं और मुझे बताइए। आप सब देख सकते हैं ये? जी सर। प्रैक्टिस के लिए जो स्लाइड दे रहा हूं, इसमें करना क्या है कि आपने एक रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करना है। आप अपनी मर्जी से किसी नेचर का किसी फील्ड से कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से, कॉमर्स से, इंजीनियरिंग से, बिजनेस से, लिटरेचर से, लैंग्वेज से, पोइट्री से, व्हाटएवर। फिर उसकी पर्पस स्टेटमेंट लिखनी है, जिस तरह मैंने यहाँ प्रैक्टिस में 3-4 दफा आपको लिख के बताया। यहाँ पे पर्पस स्टेटमेंट का मतलब है रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च जो है, पर्पस ऑफ द रिसर्च क्या होगा। फिर उस पर रिसर्च क्वेश्चंस जितने पॉसिबल हों, आप जितने समझ सकते हैं कि जी इतने इसके बन सकते हैं, वो बनाइए। डिफरेंट वेरिएंट एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं, तो उनमें से आप देख सकते हैं। फिर उसके आपने नल हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस बनाने हैं। दिस इज द असाइनमेंट ऑफ 15 मार्क्स और इसके लिए आपके पास पूरा वीक है। आपने मुझे फ्राइडे, मैं उस पे CMS पे इसको अपलोड कर दूंगा। अप टू फ्राइडे आपने इसको अपलोड करना है ताकि मेरे पास एक दिन हो चेक करके मार्क्स देने के लिए। अच्छा, आज की असाइनमेंट जब मैं चेक कर रहा था, अभी कुछ लोगों ने डबल उसको अपलोड किया हुआ है। मल्टीपल नेम्स, मोर देन अ डजन पीपल हैव अपलोडेड ट्वाइस। तो इस एटीट्यूड को लुक आफ्टर करें, ये ठीक बात नहीं है। नहीं, किसी एक बंदे की 2 दफा मैं असाइनमेंट क्यों चेक करूं? क्यों आप उसको 2 दफा अपलोड करते हो? अच्छा, फिर
मैंने उसको पढ़ा, देखा, टेक्निकली जो चीज़ें चाहिए थी, जिनकी ठीक थी, मैंने 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स भी दिए हैं, मैंने 0 आउट ऑफ 4 भी दिए हैं, 1 आउट ऑफ 4 भी दिए हैं, 2 भी दिए हैं, 3 भी दिए हैं। तो इसको रैंक करना, ग्रेड करना प्रेरोगेटिव है टीचर का। आपका राइट ये है कि आप समझ सकते हैं कि इसमें जो डेफिशिएंसी हमें बताएं ताकि आइंदा ऐसा ना हो। ये क्लेम करना कि जी ये मेरे मार्क्स कम हैं, क्यों हैं, इसका जवाब आप नहीं मांग सकते, क्योंकि टीचर मैं हूँ। जहाँ मैं फैसिलिटेटर हूँ, जहाँ मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ, वहाँ पे लीगली एंड ऑफिशियली ये प्रेरोगेटिव राइट है मेरा कि मैं उसको अपनी ईमानदारी के साथ और टेक्निकली जो ठीक होता है वो आपको रिस्पॉन्ड करूँ। तो ये क्लेम कि जी फलां के 4 हैं तो मेरे 3 क्यों हैं, फलां के 3 हैं तो मेरा 1 क्यों है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है और ना आपको जेब देता है इस तरह की बात करना या पूछना। यस, एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट। यस, जहाँ पे उसमें सपोर्ट की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि डेफिशिएंसी क्या है, वो मैं बिल्कुल आपको बताने के लिए तैयार हूँ। नाउ let me have once again the final attendance, then question answer session will be open और आप फिर अपनी बात जरूर कीजिएगा। अभी मैं जो लोग मेरे पास एब्सेंट शो हो रहे हैं, मैंने उनका नाम लेना है। किन लोगों का नाम लेना है जो एब्सेंट शो हो रहे हैं? मैं नाम लूंगा और आप यस सिर्फ कहेंगे तो मैं मार्क यहाँ पे अटेंडेंस यस कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ियाउल हसन, ज़ियाउल हसन, जुबैर खान आप तो हो ना, ज़ियाउल हसन की बात कर रहा हूँ। ओके, नहीं है। अनम ज़ारा, Yes, sir, I am present. आप अपना पिक्चर शो करें। अनम ज़ारा, Okay, sir. वीडियो ऑन करें और मुझे यहाँ नजर आना चाहिए, अटेंडेंस में ऐसे नहीं लगाऊंगा। Yes, sir, I am here. अनम ज़ारा, ठीक है। जुनैरा मुख्तार, बस आप नहीं शो हो। जुनैरा मुख्तार आप अपना ऑन करें। जुनैरा मुख्तार नहीं है। साइमा शरीफ, साइमा शरीफ नो। गुफ्ता परवीन, गुफ्ता परवीन। अफीफा शहजाद, Sir, I am here. आप शो करें अपना अपना वीडियो ऑन करें। सर मैंने वीडियो किया ऑन हुआ है। करें प्लीज। सर मैंने की हुई है। नहीं, आप नजर नहीं आ रहे मुझे। नजर नहीं आ रही। Just a minute. स्टूडेंट देखता हूँ आज। Sir, मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा भी नहीं है। मुकद्दस, sir, I am Afifa Shahzad. मुकद्दस, आई एम कॉलिंग मुकद्दस। Sir, Mehrun is present. थैंक यू। जी, किन्होंने रेज किया हैंड? बात करें, जिन्होंने हैंड रेज किया बात करें।
अस्सलाम वालेकुम सर, सदफ आबिद है सर। अभी आपने आर्टिकल के हवाले से बताया था कि आप वो काइंडली एक रिपीट मिनट, कर मुझे दें, क्या है अटेंडेंस एमरेट कंप्लीट, जहाँ से कहते हैं आप जस्ट स्टडी कर सकते हेलो, जस्ट कंप्लीट द अटेंडेंस, इसके बाद बात करते हैं। मुकद्दस के बाद मैं बोल रहा हूँ शकीला आस मोहम्मद, यस सर। आप अपना वो ऑन करें, माइक वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑन है सर। अच्छा, ये गैलेक्सी J7 से आप हैं? यस सर। आपको मेरी बात क्यों समझ नहीं आ रही? मैंने 3 दफा आपको कहा है कि आप अपने ईमेल या आईडी से, जो आपका रोल नंबर आईडी है, उससे आप एंटर हो। मैंने आपको पूरे 3 सेशन में अलाउ नहीं किया, एडमिट नहीं किया। इसी वजह से नहीं किया कि आप अपने नाम और अपने रोल नंबर के साथ एंटर हो, ना कि मुझे अपने मोबाइल का जो है ब्रांड बताएं कौन सा है। नो सर, मैंने नाम लिखा हुआ था पहले। नहीं लिखा हुआ नाम जी, ये गैलेक्सी J7 ही आ रहा है तब से। इट्स नॉट जी फाइन सर, मैं ऐसा एनफ। करती हूँ सर। ये देखा, अभी भी गैलेक्सी वो जे जो भी है वो आ रहा है। नाउ अटेंडेंस इज ओवर, कम फॉर क्वेश्चंस। और वो हैंड रेज आप करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, अदरवाइज मैं आपको अनम्यूट नहीं करूंगा। जिसने भी क्वेश्चन करना है हैंड रेज करे। हेलो जी। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, I have a question. यस हनीफ। Sir, do we create purpose statements and research questions? जी जी, बोलिए हनीफ। आप अपना माइक अनम्यूट करें ना, मैंने आपको अलाउ किया, कर सकते हैं आप। हनीफ अपना माइक अनम्यूट करें और बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए और बात सर कीजिए। सर मैं यूसुफ इज हियर। जी, लेट मी नो व्हाट यू वांटेड टू से। राना मोहम्मद जुबैर, क्या कहना चाहते हैं, बात करें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर मुझे आपसे पूछना था कि जैसा कि हमने पहला टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है और हमारा काफी हद तक आपने जैसे कि कहा कि बेहतर है कुछ, क्या हम उसी टॉपिक को आगे लेकर उसकी नल हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस बना सकते हैं या हमें टॉपिक चेंज करना है? नो नो, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन इसमें याद रहे कई लोगों ने एक दूसरे को चीट किया हुआ है। कुछ जी जी असाइनमेंट्स ऐसी हैं जो डिटो कॉपी हैं, सिर्फ नाम चेंज किया हुआ है, तो वो मैंने उनको नहीं रैंक करना, ग्रेड नहीं करना। जी जी माइट भी आपकी आपस में किसी की हो, लिंक हो, बहन भाई हो, दोस्ती हो, व्हाटएवर, लोगों ने एक दूसरे के नाम एक दूसरे पे लिखे हुए हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, मार्क्स 0 मिलेंगे। तो सर इसमें कोई वर्ड्स की भी है कि इतने वर्ड्स की हमने लिखनी, इतने पेजेस की नो लिखनी? नो नो, ये तो रीजनेबल है भाई, आपको इतनी यस सर। एग्जांपल्स दी हैं, उसके अकॉर्डिंग जी जो जी, रीजनेबल लगता है वो लिखें आप। और जो थैंक यू अर्लियर सर। टॉपिक है उसको जी थोड़ा जी मॉडिफाई करें, बेहतर करें, पढ़ लें उसको, जी रीड जी, करके बेहतर करके उसमें चीजें ऐड कर दें। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर जो हमने जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं, क्या उसमें ये जरूरी है कि हमने डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और रिसर्च साइट और पार्टिसिपेंट्स भी बताने हैं रिसर्च क्वेश्चंस में? ये आप पढ़ें, जब हमने रिसर्च क्वेश्चन बनाने के लिए फार्मूला एक स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है कि रिसर्च क्वेश्चन बनाते हुए क्या क्या चीजें, नंबर 1 पे क्या आना है, 2 पे क्या आना है, 3 पे क्या आना है, तो उससे तो हम सर वो नहीं वेरी हट सकते। करती हैं, कुछ क्वेश्चंस में ना वेरी करती हैं, मतलब किसी सब में में जो वेरी है। नहीं करती, बहुत सारी चीजें कॉमन है, एक तो चीज वेरी करती है, जहाँ वेरिएंस की जरूरत है वो करें।
सर जैसे आपने एग्जांपल दी थी तो क्वेश्चंस जो हैं वो इज से भी स्टार्ट हो रहे थे, तो हमने जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी उसमें जो है वो व्हाट व्हाई इस तरह जो है क्वेश्चन वर्ड्स उनसे स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं जी, कर थैंक यू सकते सर। हैं। और एक्सक्यूज मी सर। जी वालेकुम जी जी साजिद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मेरा एक सीएमएस का इशू है और स्टिल पेंडिंग है, और लास्ट असाइनमेंट है वो भी मैं अभी तक अपलोड नहीं कर सका। सो उनके सर मेरे बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। मैंने नदीम साहब से भी कांटेक्ट किया, आसिफ साहब से किया, और मिस सना नजीर से भी बात की इस हवाले से। तो सर मैं अपनी असाइनमेंट वगैरह जो है वो अभी तक नहीं जो है सबमिट करवा सका, और इसके अलावा कोई भी नोट्स है या किसी भी बुक के हवाले से वो चीज़ें मेरे तक अवेल नहीं हो पा रही हैं। तो सॉरी सर, अगेन ये बात आपसे भी रिपीट कर रहा हूँ, आपके सामने भी रख रहा हूँ। तो सर कुछ थोड़ी हेल्प कीजिए, या एडमिन वगैरह या कोई भी है उनसे थोड़ा अपनी पर्सनल तौर पे रिक्वेस्ट कर दीजिए। साजिद, इसमें आपको मैं ये फेवर दे रहा हूँ अकेले आपको, कि आप मुझे अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से, जो आपका MUL वाला आईडी है, उससे मेरे ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आप ये चीजें लिख दें। और मेरे यहाँ कंट्रोल में चीज कोई नहीं है, ये सारा एडमिन के पास है या उनके वहाँ कंट्रोल में है। आप उन्हें भी ईमेल करें और उन्हें कहें कि मेरा ये इश्यू रिजॉल्व करें, क्योंकि इस तरह आपका वाकई नुकसान हो रहा है, वो ठीक बात नहीं है। Excuse me, sir. I want सर to आपके ask. पर्सनल जो आईडी। Sir, my name is Afifa Shahzad. जी अफीफा, जी जी Sir, I have also taken the previous sessions on Saturday and Sunday. Sir, मेरा भी ये जो भाई ने आगे इशू बताया है, same is the case with me, कि मुझे कोई आईडी नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला. Even that I am in the class, but my attendance is not being marked. And sir, same thing है, मेरा भी लॉस हो रहा है काफी ज्यादा. आप क्या उधर से आप लिटरेचर से यहाँ शिफ्ट हुए हो? नो सर, ये लिंग्विस्टिक्स ही है शुरू से. अच्छा, लिंग्विस्टिक्स की है। इसमें अफीफा मैं अपने एंड पे जो हेल्प कर सकता हूँ यही है कि मुझे आप चीजें ईमेल कर दें, मैं रिकॉर्ड रख लेता हूँ। जब वो ओपन करेंगे CMS तो मैं वहां डाल दूंगा। मेरे पास उसका कंट्रोल नहीं है, इसके लिए आपको राब्ता नहीं करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी से राब्ता करें और उन्हें कहें इसको मेक श्योर करें। सर आपकी जो पर्सनल आईडी है उस वो जरा शेयर करते हैं हमसे। मेरा पर्सनल आईडी जो ऑफिशियल मिनहाज का है उस पे। अच्छा ठीक हो गया सर, ओके। हाँ जी, शुक्रिया जी वेलकम वेलकम। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। तो भाई अपना नाम भी बोल दिस इज शाजिया लतीफ। यस शाजिया। सर दिस इज शाजिया लतीफ. Sir, you said null and research hypothesis. It means null and alternative hypothesis, or maybe null or alternative, or both. सुने, तीनों तरह के बनाने हैं। नल तो आप बनाएंगे ना जो निगेट कर रहा होगा, तो दूसरा आप अल्टरनेटिव या रिसर्च हाइपोथेसिस बनाएंगे जो डायरेक्शन दे रहा होगा। जो टाइप्स हमने पढ़ी हैं वो सारी यूटिलाइज करनी है। ओके, थैंक यू सर। मारिया ने जी मारिया। सर मैंने पूछना है कि हमारी जो लास्ट असाइनमेंट थी उसमें जो डेफिशिएंसीज हैं वो हमें कैसे पता चलेंगी? मतलब कोई कमेंट्स या कोई व्यूज आपकी तरफ से तो नहीं शो हो रहे हमें? उस पे मैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस? हाँ, उस तरह है कि CMS पे अवेलेबिलिटी नहीं है। मैंने एक कमेंट लिखने की कोशिश की थी, जब मैं कमेंट लिख के उसको वापस अपलोड करता हूं तो वो अनचेंज्ड ही अपलोड हो जाता है। उसकी फिर उसकी सूरत ये हो सकती है कि आप मुझे ईमेल करें, तो ईमेल पे शायद पॉसिबिलिटी हो कि मैं कमेंट कर सकूं, बट ईमेल शुड बी ऑफिशियल ओनली, नॉट अनऑफिशियल। सर आई थिंक अगर हम आज की जो स्लाइड्स देखें तो इनसे हमें काफी हेल्प आउट हम ले सकते हैं। जी बिल्कुल आप करें, आपके पास क्योंकि इसमें एग्जांपल्स ज्यादा हैं। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जुबैर। सर जुबैर बात कर रहा हूं, जुबैर खान। सर आपने 15 मार्क्स की असाइनमेंट दी है ना आज? यस। तो इसका नेक्स्ट वीक तक दुरानी है, फ्राइडे तक। जी शुक्रिया, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी।
एक्सक्यूज मी सर जो हमने रिसर्च क्वेश्चन लिखने हैं वो कितने लिखने हैं, क्योंकि पहले तो हमने एक एक लिखा था ना एक एक पर्पस स्टेटमेंट का। हाँ तो गलत था ना, पहले भी मैंने कहा था कि एक पर्पस स्टेटमेंट पे 2 क्वेश्चन लिखने हैं, तो वो ठीक नहीं लिखे हुए थे। तो इसमें कोई नंबर बाउंडेड नहीं है। एग्जांपल्स मैंने आपके पास 6 रखी हैं, और एग्जांपल्स को देखें और उसके मुताबिक करें। हो सकता है सर जो हाइपोथेसिस जो है वो नल और अल्टरनेटिव दोनों लिखने हैं, तमाम तरह के जितने हमने पढ़े हैं। जी ठीक है सर। सर मुझे ये पूछना था कि उसमें जो म्यून हमने निकालना है कि जो है जो आपने फॉर्मूला बताया, तो वो हम किस तरह से निकालेंगे? आप जरा पूरी आवाज से बात करें, नहीं समझ आ रही। सर आपने बताया था कि जब नल हाइपोथेसिस लिखेंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखेंगे तो उसमें हम जो है म्यून उसका निकालेंगे, तो वो किस तरह से निकालेंगे? काइंडली वो एक तो बता दें। सर दूसरा मेरी जो सर मीन जो है उसका क्या मीनिंग की मुझे नहीं समझ आ रही, क्या कह रहे हो? सर सिंबल दिया था आपने नल हाइपोथेसिस फिजिक्स की जो टर्म यूज हुई है म्यू निकालें। तो वो तो उस स्लाइड को आप दोबारा पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी। म्यू नहीं निकालना आपने, वो तो मैंने समझाने के लिए कहा था कि ये एक्चुअली म्यू है क्या, मीन है। वो एक स्टेटमेंट है, इस तरह स्टेटमेंट लिख देनी है। μ1 is equal to μ2 is the null hypothesis, इसका सिंबल है बेसिकली, इट्स द symbolic representation of the null hypothesis. And if μ1 is equal to μ2 is not equal to μ2, that is the symbolic representation of the research hypothesis. तो वो नंबर्स तो मैं जस्ट समझा रहा था कि म्यू होता क्या है। Sure sir, that's why I was little bit confused. और सर मुझे ये पूछना था कि मेरी जो प्रीवियस असाइनमेंट है वो अभी मार्क नहीं हुई, तो मुझे वो कैसे पता चलेगा? किसी की अनमार्क नहीं है। अगर वहां मार्क्स नहीं लगे हुए तो इसका मतलब है मार्क्स 0 है। ओके सर। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर, अक्षर है। या सर मैं बस एक चीज क्लियर करना चाह रही हूँ कि जो हमारी प्रीवियस असाइनमेंट थी, अगर उसमें से ही हम वो टॉपिक लेकर उसको मॉडिफाई करके रिफाइन करके उसकी हमने एक पर्पस स्टेटमेंट लिखनी है और फिर जितने क्वेश्चन बनते हैं उतने राइट करने हैं, और उसके बाद हमने नल और रिसर्च हाइपोथेसिस जो है निकालने हैं। ऐसे ही करना है ना? अभी 5 मिनट पहले इसमें बात हुई है और यही बात किसी ने की थी, मैंने ओके किया है। यस सर। all possible research questions and all possible hypotheses आपने लिखने हैं और उसको दोबारा से रिविजिट करके एक दफा अच्छी तरह लिख लेना है, देख लेना है कि इसमें कमी है तो उसको पूरी करें। एंड रिसर्च टॉपिक की बात हो रही है, रिसर्च टॉपिक, देन ऑब्जेक्टिव और पर्पस स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं, या पर्पस ऑफ द स्टडी, एंड देन यू हैव टू राइट द रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। 4 बातें करनी है जी। और टॉपिक सर हम प्रीवियस यूज कर सकते हैं, मतलब हजूर में अस्टाम लिख दूंगा, कर सकते हैं कर सकते हैं सर। थैंक यू। कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर टॉपिक शुड बी क्वांटिटेटिव और रिलेटेड टू क्वालिटेटिव, जो आपकी मर्जी है, जो आपकी मर्जी है। बेहतर है क्वांटिटेटिव, अच्छा रहेगा। मेरा ये क्वेश्चन है जी साजिद कि जो हम टॉपिक सिलेक्ट करेंगे उसमें से वेरिएबल्स निकालने तो नहीं पड़ेंगे अलग से? तो हमें ऊंची आवाज में। वेरिएबल्स नहीं निकालने पड़ेंगे। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? आप बोलेंगे तो आएगी ना आवाज भाई। बोल रहा हूँ मैंने ये पूछा है कि अलग से सेपरेटली हमें वेरिएबल्स शो तो नहीं करने पड़ेंगे? नहीं, अलग नहीं लिखना। अगर आप लिखें तो वो ठीक रहेगा, आसानी रहेगी आपको भी, मुझे भी समझने में, वरना कोई मसला नहीं है ना भी लिखें तो। एक्सक्यूज मी सर। जी कर सकते हैं, कोई सा भी टॉपिक हम सिलेक्ट कर सकते हैं इन एवरी फील्ड। जी बिल्कुल, किसी भी फील्ड से किसी भी तरह का टॉपिक आप ले सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जब हम पर्पस स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये कंफ्यूजन है कि पर्पस स्टेटमेंट से पहले टॉपिक हमने अलग से मेंशन करना ये जरूरी है, या जस्ट हम जो पर्पस स्टेटमेंट हमने बनानी है बस वही लिख दें, या ऊपर अलग से मेंशन करना जरूरी है? आपने 5 और 6 एग्जांपल्स पढ़ी हैं, वहां अलग लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था? जी सर लिखा था। तो फिर इसमें पूछने वाली क्या बात है?
हाँ जी, और सर एक प्रॉब्लम है दो सर। बताएं आप प्रॉब्लम। लास्ट वीक में मैंने सारा सेशन आपका जो है वो अटेंड किया था, लेकिन मेरी एब्सेंट मार्क हो गई थी। हाँ, तो सर इसका कोई हल नहीं हो सकता कि जो पीछे मैंने किया है अब मैंने अच्छा जो जिस हो समय गया वो हो गया, उसका पता क्या है, जब मैं अटेंडेंस अपलोड कर दूंगा ना तो मेरे पास उसका वो नहीं है कंट्रोल कि मैं उसको करेक्ट कर सकूं। अभी मैंने एहतियातन इस तरह किया है कि उस शीट का अलग से कॉपी करके पेस्ट अलग किया है और उसके आगे अटेंडेंस लगाई है ताकि किसी का मसला ना बने। तो ये आप केयर किया करें। अभी भी देखें मैंने 3 दफा अटेंडेंस ली है ना, तो सारा टाइम यही काम नहीं करना। तो आपको पूरे सेमेस्टर में 7 छुट्टियां करने की इजाजत होती है, 7 से ज्यादा नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी रूल ये होता है कि आपने 75% अटेंडेंस पूरी करनी है, कम हुई तो आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। तो एक हो गई ये छुट्टी, इसको आप छुट्टी कंसिडर कर लें। आप आइंदा कोशिश करें कि ऐसा ना हो। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये पर्पस स्टेटमेंट जो आपने बोला कि ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो पर्पस स्टेटमेंट हमारी सिंगल एक स्टेटमेंट होगी या हम इसको ऑब्जेक्टिव्स की तरह मेंशन करेंगे पॉइंट्स में कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकंड, थर्ड? आप में से कोई जवाब देगा इस सवाल का? भाई मैंने कई दफा बताया, तो कोई बोलेगा? सर पर्पस स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट की फॉर्म में होगी, ये ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्म में नहीं होगी। ये पर्पस ऑफ द स्टडी है। बेसिकली आपने रिसर्च टॉपिक लिखना है, पर्पस ऑफ द स्टडी लिखना है, उसे आप पर्पस स्टेटमेंट कह लें, उसे आप ऑब्जेक्टिव भी पूरे लिख लेंगे, पैराग्राफ की तरह उसे आप ऑब्जेक्टिव भी लिख लेंगे तो मसला नहीं है। पैराग्राफ ये है अनड्यू पैराग्राफ लंबा नहीं होगा। उसमें आप पढ़े चीजें किस तरह लिखी हुई हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि हमें करना क्या है। सर मुझे ये कहना था कि CMS पे जो है आप हमारी असाइनमेंट्स चेक कर सकते हैं, तो अभी काइंडली आप मुझे चेक करके बता देंगे उसमें मिस्टेक्स क्या हैं, ताकि मेरी नेक्स्ट असाइनमेंट में वो मिस्टेक्स ना हो। अभी टाइम क्लोज होने वाला है इसका, और उसको जब तक खोलूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 बासत सर अटेंडेंस से रेलिवेंट एक इशू था। बाज़ अटेंडेंस बोली जा रही होती है, किसी का इंटरनेट इशू होता है या माइक वर्किंग में नहीं होता, अटेंडेंस नहीं लग पाती। तो उसमें हमारे एक टीचर है, उन्होंने उसका ये रेमेडी निकाली है कि वो CR या GR को कहते हैं कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एक स्क्रीनशॉट टीचर के साथ शेयर कर दें, ताकि वहां से एक बार रिकन्फर्म भी हो जाए। अगर कोई नहीं भी बोल सका तो वो पार्टिसिपेंट्स की जो लिस्ट है उसके स्क्रीनशॉट से वो रिकन्फर्म किया जा सकता है कि दैट स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन द क्लास। वो टीचर बड़े अच्छे टीचर हैं, उन्होंने हेल्प के लिए GR से मदद ली। तो ये काम मैंने आज खुद किया है। मैं कल वाली क्लास में मैंने स्क्रीनशॉट्स खुद लिए थे, अभी भी आज मैंने स्क्रीनशॉट्स खुद लिए हैं। तो वो शो हो रहा होता है जैसे जैसे आप ऑन हो रहे होते हैं, उसको मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, तो दैट्स फाइन इनफ। और अगर आपकी तरफ से कोई हेल्प करना चाहे तो कर दें, मुझे अच्छा लगेगा। सर हमारे CR और GR अनाउंस्ड है, आप उनसे कह दें वो कर देंगे हेल्प। मुझे सिर्फ GR का पता है, CR नहीं पता। सर वो बोल पड़ेंगे अभी खुद ही होगा नहीं मैंने आपको बताया। बोले जी, CR कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर, सदफ आबिद है। यस सदफ, बताइए। सर आपने अभी हमें ना आर्टिकल रीडिंग के लिए सजेस्ट किया था, सर काइंडली वो ना रिपीट कर दे। एमरिड था क्या था? मैंने ना नोट करना था लेकिन एमरल्ड डेटाबेस है, उसके आप आर्टिकल डाउनलोड करके, डाउनलोड ना भी हो वहाँ खुल जाए। खाली उसका अगर आप एब्स्ट्रैक्ट ही पढ़ लें तो आपको बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी। और एक्सक्यूज मी सर, दूसरा आपने APA का लेटेस्ट फॉर्मेट जो है वो कहाँ से हमें मिलेगा सर? वो गूगल पे पढ़े, आप लिखें 7th मैनुअल ऑफ APA तो वो मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, एनी अदर? एक्सक्यूज मी सर। यस सर जुबैर खान बात कर रहे हैं। जी जुबैर खान, आपने ये स्टिल पिक्चर लगाई हुई है? सर CR का पूछ रहे थे आप? हाँ हाँ बताइए। तो ये सर मैं जुबैर खान, जुबैर खान है? जी जी सर। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं एक्टिविटी, स्क्रीनशॉट्स लेके सेंड कर सकते हैं मुझे। सर जैसा आपका हुक्म। बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा कि आप करें मदद।
जी सर जरूर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से मैं स्क्रीनशॉट ले लिया करूंगा। नो इशू। हाँ, जैसे जैसे लोग एंटर हों आते जाएं तो कर लें, मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स ले लें और वो मुझे आप ईमेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें, ठीक है? जी जरूर सर। थैंक यू जी। कोई और? हेलो एक्सक्यूज मी सर, ये सर जब हम अपना माइक 15 मार्क्स अनम्यूट करते हैं ना तो फिर हमें दूसरों की आवाज नहीं आती। लाइक कोशिश करें ना कि सिर्फ अपना लोग जो बोल रहे हैं बाकी फिर ना बोलें। बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर असाइनमेंट 15 मार्क्स की है तो हम जो मैक्सिमम इसको कितने पेजेस में कर सकते हैं? लास्ट टाइम पर्पस स्टेटमेंट लिखी थी, हाय अब मेरे इसमें हमें अल्लाह, 2 कोई लिमिट नहीं पेजेस की, जब तक पूरी ना हो इसको करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं पेजेस की। ये टेक्निकल चीज जी है सर। ना, इसको तो आप फिक्स नहीं कर सकते। जी आप कौन बात कर रहे हैं? आपका नाम नहीं आ रहा और आपका वो भी नहीं आ रहा, आईडी भी नहीं आ रहा। ये 2020 एस एम फिल लिंग्विस्टिक, ये कौन है? दिस वन एक्सक्यूज मी सर। यस बताइए। दिस इज साजिद इकबाल सर। कल जो मेरी अटेंडेंस नहीं हुई थी, जब अटेंडेंस के टाइम आया तो उस वक्त नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, तो सर कल आप किस क्लास कैसे में थे? मतलब कल किस सर क्लास? अली साहब की क्लास सर। उसका कल मैं क्या सैटरडे कर क्लास हुई। उसका सर मैं थोड़ा सा पूछ रहा हूँ, मतलब उसमें कोई एब्सेंट का मसला तो नहीं होगा उसमें? मैंने बताया कि आप मैक्सिमम 7 टाइम्स एब्सेंट हो सकते हैं, उससे ज्यादा होंगे तो मसला तो होगा। अच्छा, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मसले से ज्यादा मसला जो हो सकता है ना, वो आपका लर्निंग का है। देखें इतनी चीजें बार बार हम डिस्कस करते हैं, रिपीट करते हैं, शेयर करते हैं, तो जब आप नहीं होंगे क्लास में तो आप तो नहीं सीख सकेंगे ना। तो आप कोशिश करें कि एक्चुअली क्लास तो होती है बट वो नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह से डिस्टॉर्शनन हो जाती है आप कोशिश करें कि आप अपना नेटवर्क बेहतर लें और आइंदा ऐसा ना हो। अनफॉर्चुनेटली ये होता है, अदरवाइज इंटेंशनली कोई भी नहीं करता हूँ। अब उसका नेटवर्क आपका ठीक मैं तो नहीं कर सकता ना। चलें जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।